Hello everyone, welcome to my channel. Hello everyone, welcome to my channel. This is Vaishnavi Gupta, hoping you're happy and healthy. And yes, I'm back with another video. I'll tell you what you can do and which book I am talking about, Prayas Educart. Yeah, once again, because this is a good book and I want you to buy this because it is a good book. And please ignore the noise behind. पीछे कुछ कीर्तन भजन कुछ हो रहा है. I don't know, something is happening in my colony, तो आवाज आ रही होगी. Please थोड़ा try to adjust. And let's begin with the video. So I have already created a review video for it. If you have not watched that video, go watch it. Check the description. If you're thinking to buy this book, go buy this. And if you are the first and if you are new to my channel and haven't watched any of my videos and the Prayas Wali videos, then you can watch this video as I'll be discussing some of the hidden features of this book which we have not discussed before. This book and the solution book we get, the scorecard and everything. So the important things that you need to know before buying this, and if you have bought this, to know how to actually utilize this book fully. So this book comes in this cover and we have some tips and everything right here. The teacher's name, as we know, मैंने जो कि starting अपनी review video में दिखाया था, and the things that are written are pull out format जो कि इसमें given है. आप किसी भी sheets वगैरह while practicing register में करते हुए you can use this book. And I think this time पे ना either you are practicing most important questions or you are doing sample papers. So this is the time, क्योंकि बहुत कम टाइम है, you know, अब gap days में भी you will not do questions practice, you will do sample paper and NCERT. So जो जब तक पेपर शुरू नहीं हो रहे, you are going to practice question, और जिससे भी आप weak है आप उस चीज को कवर करोगे, right? और you will do chapters जो आपके pending रह गए थे. And as it covers your 4 books fully, every single chapter, every poem of English, every chapter of SST, everything is covered in this book, every important question. So I think this would be very, very beneficial. Then it gives a day-wise plan. जिसकी वजह से this is known and this is getting very famous because of it. Questions quality is there because 2025 boards के लिए जो highly probable questions है, like the most chances जिसके हैं, those are the questions that you are getting, and you will get a reality check. क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको मिलेगा when you get your board result. But उससे पहले एक अच्छा reality check मिले, इसलिए you give even scorecards for all the subjects जिसमें you can mark name and everything you can write. Then you can give yourself, like हम लोगों को बचपन से, I don't know about you, but I had this very urge to check my own answers, कितने marks हैं and everything, and that you can actually do. You can record your performance. It's like a report card बन जाएगा आपका उस subject का, कौन कौन से chapters है, सारे chapters are written in this, and you can mark like poor, average score है, good score है, how many number of questions were you correct and everything. So इसे देख के तुम्हें अच्छा लगेगा. जस्ट इमेजिन इसमें तुम्हारे सारे जितने क्वेश्चन है उसमें तुम्हारे फुल आए हैं, या फिर यू आर अबव एवरेज इन एवरीथिंग इन ऑल दीज मैथ्स एसएसटी, तो तुम्हें देख के अच्छा मिलेगा, विच विल इंक्रीज योर डोपामिन, जिससे तुम्हें कॉन्फिडेंस गेन होगा. और अगर कॉन्फिडेंस गेन नहीं होगा तो तुम्हें रियलिटी चेक मिल जाएगा कि नाउ यू नीड टू फोकस ऑन दिस चैप्टर. हमें चैप्टर वाइज जब क्लैरिटी रहती है ना, देन वी नो कि हमें किस चीज पे फोकस करना है. अगर हम हवा में तीर चलाएंगे ना कि यार ये सारे चैप्टर्स आते हैं, सब एक बार पढ़ लिया है, देन यू वोंट गेट इट. यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड कि हाँ ये वाला चैप्टर करना है, ऐसे करना है. देन ओनली यू कैन यूटिलाइज द बुक प्रॉपरली एंड कैन गेट अ गुड स्कोर. And that was maybe something which I missed, and I could not score like 100% or 95 plus, but 90 plus. एंड वो इसलिए ही हुआ बिकॉज मैं भी हवा में ही तीर चला रही थी कि हाँ ये चैप्टर्स हो गए. मैं आई डेंट हैव एनीथिंग एडुकार्ट नहीं है इस साल निकाला है. आई डेंट हैव एनीथिंग लाइक दिस, अदरवाइज आई वुड हैव बॉट दिस. एंड आई थिंक ये मेरे बहुत ज्यादा काम आता है. इससे मुझे पता चलता है मुझे कहाँ पर फोकस करना है एंड व्हाट आर माय वीक पॉइंट्स. Okay, I didn't have this, but guess my juniors do have this good opportunity to buy this book and actually utilize it. So for you guys, you can do that and practice these questions. And even if 21 days से थोड़े कम बचे and it is a 21-day plan, अगर तुम एक chapter extra कर लोगे, so I think ये तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा. Because at the end of the day, you're not actually practicing only 10 questions a day of all the 4 subjects. So you can, मतलब थोड़ा सा you can work hard a little and go for it. Let's talk about the solution book. तो solution book का मैंने अच्छे से रिव्यू आई थिंक नहीं किया था, so we can do it right now. You can see the index. पर सबसे पहले पता है इंडेक्स में गिवन है all the 21 days का with page number कहाँ पे कौन सा है. शायद आपको ये मिरर वीडियो दिख रही होगी, but you can understand it. I think everything is given. तभी ये बहुत ज्यादा मोटी नहीं है, thin book क्योंकि सारे आंसर्स गिवन है इसमें, but very structured and very detailed answer, and I appreciate this very much. No step is missed. And as I said before, the best thing that I like about this is कि चैप्टर का नेम भी नीचे दे रखा है. जो भी चैप्टर आप कर रहे हो, चाहे वो एसएसटी का हो
चाहे वो रीडिंग कोई राइटिंग स्किल का हो, एवरीथिंग। नीचे टॉपिक का नाम लिखा है या फिर चैप्टर का नाम लिखा है। मैथ्स में जैसे कि चैप्टर का नाम तो अब नहीं लिखा बिकॉज चैप्टर तो हेडिंग है, तो टॉपिक का नाम लिखा है। सो यू कैन प्रैक्टिस दोज क्वेश्चन, दोज टॉपिक्स अगर तुम्हारा वो गलत गया है तो। वैसे ही नेशनलिज्म इन इंडिया, इफ यू आर डूइंग द चैप्टर और डूइंग एसएसटी, तो उसमें भी टॉपिक का मेन हाईलाइट लिख के, सो दैट यू कैन गो टू एनसीईआरटी एंड रीड दैट टॉपिक अगेन अगर तुम्हारा उसमें से आंसर कुछ गलत गया है। पता है, इट्स ऑनेस्टली अगर तुम सोल्यूशन सिर्फ पढ़ रहे हो ना, यू कैन रीड द सोल्यूशंस फर्स्ट एंड देन राइट योर आंसर्स, एंड देन तुम चेक कर सकते हो कि कैसे टॉपर्स आंसर लिखते हैं और कैसे तुम्हें लिखना चाहिए था, हाउ यू कुड हैव रोड, कौन से पॉइंट्स आपने मिस करे और कौन से तुम्हें कर लेने चाहिए थे। एंड इवन इफ यू जस्ट रीड द सोल्यूशंस, वो तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, बिकॉज इट्स लाइक मोर और लेस अ समरी। यही 6 मार्क्स में और 5 मार्क्स में, 3 मार्क्स में यही क्वेश्चन बनते हैं इन एसएसटी, इंग्लिश एंड साइंस, आई वुड से। ये मतलब मैथ्स में तो द क्वेश्चंस कैन बी चेंज, बट इन दीज चैप्टर्स एंड इन दीज सब्जेक्ट्स ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं, टिपिकल वही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वही चीजें बार बार रिपीट होती हैं। तो कैसे आंसर्स लिखने हैं सो दैट यू कैन स्कोर फुल, कौन से पॉइंट्स लिखने हैं, कैसे लिखने हैं, वो तुम्हें ये बुक बहुत अच्छे से बताएगी। आंसर की इज वेरी वेल मेड एंड आई थिंक बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। यू विल गेट अ फाइनल रियलिटी चेक विद दिस वर्कशीट एंड दीज आंसर। सो यू विल गेट अ 21 days की वर्कशीट फॉर 4 subjects, as I said। हर किसी में 10 to 15 questions है, the most important ones only। जबरदस्ती if you're just doing question bank, और even if you already have a question bank, या फिर it's like कि तुम्हारे पास already sample papers हैं, this is another thing, this is different from those things। These are the most important things and these are the most important questions from each chapter and each subject। So this is different from your question bank जिसमें तुम्हें ढूंढना पड़ रहा है, या फिर sample papers, क्योंकि sample papers पे तो you'll do in gap days, या फिर तुम तब जाओगे ना जब तुम्हारा चैप्टर स्ट्रांग होगा। एंड सैम्पल पेपर से यू कैन नॉट आइडेंटिफाई कि तुम्हारा कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक वीक है, जो कि इस बुक से यू विल। बस ऐसे ही बहुत अच्छे से आपके सारे चैप्टर्स आर कवर इन दिस सोल्यूशन बुक, एवरीथिंग। लेट मी जस्ट गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ इट, एवरीथिंग इज कवर्ड। एंड एक जेन्युइन टिप दूं तो मेरे जो मार्क्स कटे थे, आई थिंक 3-4 मार्क्स, आई कैन बेट कि वो सिर्फ और सिर्फ मतलब मैप में कटे होंगे, या तो एक हाथ और एक एमसीक्यू में। मेरे सब्जेक्टिव में बहुत अच्छा गया होगा बिकॉज आई रोट इन पॉइंट्स, आई अंडरलाइंड इट। द आंसर शीट जैसे लिखते हैं, आंसर स्ट्रक्चर्ड वे में लिखा था, अंडरलाइन किया था, हर सेक्शन को नई शीट से शुरू करा था। सो बहुत ज्यादा वो अच्छा किया था वो चीजें। बट आई थिंक एमसीक्यूज में मेरी मिस्टेक हो गई होगी बिकॉज एमसीक्यूज थोड़े ट्रिकी आते हैं, तुम्हें ऑर्डर पता होना चाहिए जो ऑर्डर वाले एमसीक्यूज होते हैं। If you know what I'm talking about, then you know. If you don't know what I'm talking about, you just don't know. ऑर्डर वाले ना एमसीक्यूज आते हैं, कौन से ऑर्डर में है, अरेंज इट इन द ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर। तो वो चीज में शायद, एंड इन मैप बिकॉज आई डिड नॉट फोकस ऑन मैप्स बहुत ज्यादा, बट आई थिंक उसी चीज में मेरे मार्क्स कटे सिस्टम में। सो आई एम वार्निंग यू, डोंट डू दिस। एंड इफ यू बाय दिस बुक ना, तो फिर तुम्हें ऑलरेडी आइडिया लग जाएगी कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और तुम्हारी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी ऑलरेडी। Coming to everybody's favorite part, the book, ये वही है जो मेन बुक में कवर था, वही अंदर कवर है। एंड पुल आउट फॉर्मेट मैं ऑलरेडी पहले दिखा चुकी हूँ, एंड इन द शॉर्ट्स टू, सो यू कैन गो एंड चेक दैट है। इसमें जो प्रैक्टिस कहते हैं ना कि प्रैक्टिस क्या करे, ग्रामर में मार्क्स कट जाते हैं, राइटिंग स्किल्स के मार्क्स कट जाते हैं, इफ यू प्रैक्टिस दिस ना, वो बहुत इनफ है। मैंने बिना प्रैक्टिस करे गई थी, आई थिंक इस वजह से मेरे मार्क्स डिलीट हो गए उसी चीज में। तो इस लिटरेचर आई वॉज वेरी वेल प्रिपेयर्ड अबाउट इट, बट जिस बार मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी उस चीज में थोड़ी सी दिक्कत हो गई, तो उस चीज में आपको दिक्कत ना हो, यू कैन बाय दिस बुक। प्लानिंग इज नॉट जस्ट कि ऐसा नहीं है, मेरे को पता नहीं था पहले कि सिर्फ एक चैप्टर दिया है। इफ यू थिंक इफ इट इज गिवन ना कि इंग्लिश में कम चीजें हैं, कुछ भी है, सो कुछ और भी गिवन है, ऐसा नहीं है। किसी किसी दिन है ऐसी साइंस को हटा दिया, 2 दिन मैथ्स ही कर लिया, या फिर मैथ्स को हटा दिया फिर एसएसटी इंग्लिश ले लिया, साइंस को हटा दिया इंग्लिश को हटा दिया। इट इज लाइक दैट। आई थिंक इंग्लिश इज इन एवरी डे इंस्टेड ऑफ द लास्ट वन, बट देयर आर टोटल 67 वर्कशीट्स फॉर यू। तो 67 वर्कशीट्स में तुम्हारा पूरा सिलेबस खत्म हो रहा है इन दिस 21 days। एंड इवन इफ यू जल्दीबाजी में कर रहे हो, जस्ट इन 15 to 20 days एंड इन 60 to 67 वर्कशीट, पूरा सिलेबस A to Z विद द क्वेश्चंस, विद प्रॉपर प्रैक्टिस, तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। और ये तुम्हें कोई लिटरली सर्विंग यू जस्ट हैव टू ईट, वो तुम्हारा पूरा खाना परोस के दे, यू जस्ट हैव टू ईट इट। यू कैन रीड द आंसर्स फर्स्ट एंड देन डू द क्वेश्चंस, सो दैट तुम देख सको तुम्हारे आंसर लिखने का तरीका कैसे है। मतलब नॉट एट द सेम टाइम, लाइक आज मैंने क्वेश्चंस पढ़े तो शाम को मैंने आज मैंने आंसर्स पढ़े और शाम को मैंने उसके क्वेश्चंस कर लिए एंड देन रीचेकिंग इट। यू कैन डू इट दैट वे।
एवरी चैप्टर, लाइक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो नहीं भी है या फिर कुछ कटा है, इट्स नॉट कि उन चैप्टर को रिमूव कर दिया है, एवरी चैप्टर इज देयर. एंड आई लव दिस न्यू बुक एंड आई लव द स्मेल ऑफ न्यू बुक ऑल्सो एंड आई लव दिस न्यू बुक ऑल्सो बिकॉज आई विश आई हैड दिस. दिस इज अ गुड बुक, यू कैन गो फॉर इट. फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी डाल रखा है इसका, दी टॉप, यू कैन गो एंड बाय दैट बुक फ्रॉम देयर. यू डोंट फील लाइक इसमें वर्कशीट यूज करनी है, टाइम नहीं है, इसमें भी गिवन है. इसमें देखो टाइम भी गिवन है, यहाँ पे कितना लगाना है उस चैप्टर के लिए, और यहाँ पर नंबर भी गिवन है कितने क्वेश्चंस और कितने तुम्हारे करेक्ट है. तो जब भी तुम इसे गो थ्रू करोगे ना सिर्फ, तभी तुम्हें आइडिया लग जाएगा. डन एंड कुडंट, यू कैन इवन राइट एवरी क्वेश्चन के साइड में तुम लिख सकते हो दैट वर यू एबल टू डू दिस क्वेश्चन और नॉट. दिस वॉज द बेस्ट थिंग दैट आई सॉ. दिस मार्क इज मेड इन एवरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जैसे कि इस क्वेश्चन में बना है, इस क्वेश्चन में नहीं बना, मतलब इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें मार्क भी बना रखा है कि यू हैव टू पुट एन एक्स्ट्रा एफर्ट. और ये तो पक्का करना है. केस बेस्ड स्टडी कॉम्पिटेंसी बेस्ड, जो हमारे साथ पिछले साल हमारी जो ट्रायल एंड टेस्टिंग हुई थी, वी वर द एक्सपेरिमेंट बैच, तो हमारे साथ तो पक्का ही आएगा. So वैसे क्वेश्चंस भी आर देयर एंड यू माइट सी दिस सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन इन योर बोर्ड पेपर, और गेस व्हाट, तुमने ऑलरेडी कर रखा होगा. सो इट इज बेनिफिशियल फॉर यू, इजंट इट? साइंस असिस्ट यू एवरीथिंग. केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस भी है आपके पास, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है. ये तीनों चीजें इन लोगों ने सिर्फ उन 10-15 क्वेश्चंस में कंप्लीट कर रखी है. उन्होंने द मोस्ट इंपॉर्टेंट चुने एंड देन दे पुट इट इन दिस. And that's it for this video. I just thought कि मुझे बताना चाहिए आप लोगों को these were some things that which I missed in the previous videos. So I thought to convey it to you ताकि तुम्हें पता हो ये चीजें and how to use this book properly and score a good grade. And I wish you best of luck and my best wishes are with you. Good luck for your board examination and ace your board examination. And don't forget me about you give boards देने के बाद. कमेंट डाउन एंड टेल कैसे गया. एंड तब तक मैं कुछ ना कुछ वीडियोस अपलोड करती रहूंगी फॉर यू टू. सो सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट, एंड इफ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच. कमेंट डाउन बिलो इफ you like the video or not, and I'll see you in the next one. Till then, you know you have to take care of yourself, and bye bye.